ایران کے سپریم لیڈر شہید علی خامنائی کے دوسرے بیٹے مجتبی خامنائی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان نے نئے رہنما کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کی مجلس خبرگان نے ایرانی عوام سے اتحاد قائم رکھنے اور مجتبی خامنائی کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ سرکاری میڈیا پر جاری بیان میں مجلس خبرگان نے کہا کہ مجتبی خامنائی کا انتخاب ووٹ کے ذریعے کیا گیا، جبکہ تمام ایرانی شہریوں، مدارس اور یونیورسٹیوں کے دانشوروں اور علمی حلقوں سے یہ کہا گیا کہ وہ قیادت کے ساتھ بیعت کریں اور قومی یکجہتی کو برقرار رکھیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر کے منصب پر مجتبی خامنائی کی تعیناتی کو تاریخی فیصلہ قرار دے دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مجتبی خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کرنا ایران کی طرف سے مسلسل مزاحمت کا اشارہ ہے، تو ایران کے سپریم لیڈر شہید علی خامنائی کے دوسرے صاحبزادے مجتبی خامنائی کو ملک کا نیا سپریم لیڈر مقرر کر دیا گیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان نے نئے رہنما کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کی مجلس خبرگان نے ایرانی عوام سے اتحاد قائم رکھنے اور مجتبی خامنائی کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ سرکاری میڈیا پر جاری کردہ بیان میں مجلس خبرگان نے کہا کہ مجتبی خامنائی کا انتخاب ووٹ کے ذریعے کیا گیا۔ تمام ایرانی شہریوں، مدارس اور یونیورسٹیوں کے دانشوروں اور علمی حلقوں سے یہ کہا گیا کہ وہ قیادت کے ساتھ بیعت کریں اور قومی یکجہتی کو برقرار رکھیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر کے منصب پر مجتبی خامنائی کی تعیناتی کو تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے۔ مجتبی خامنائی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں جشن شروع ہو گئے، جبکہ ایران کی مسلح افواج کی قیادت نے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سے وفاداری کا عہد کر لیا ہے۔ علی لاریجانی نے کہا کہ موجودہ حالات میں نیا لیڈر ملک کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ مجتبی خامنائی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد ایران بھر میں جشن۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں عوام قومی پرچم اور مجتبی خامنائی کی تصاویر اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئے۔ عوام کی طرف سے نئے سپریم لیڈر کی تصاویر پر گلپاشی بھی کی گئی۔ پاسداران انقلاب نے نئے لیڈر سے وفاداری کا عہد لیا اور کہا مجتبی خامنائی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ نئے سپریم لیڈر موجودہ حساس حالات میں ملک کی قیادت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دھمکیوں کے باوجود خامنائی کے جانشین کے انتخاب پر مجلس رہبری کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے کھل کر مجتبی خامنائی کی حمایت کا اعلان کیا اور ایرانی عوام سے بھی یہی کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مجلس خبرگان کے فیصلے کو بالکل درست قرار دیتے ہوئے کہا قیادت کی پیروی کرنا ایرانی عوام کا قطعی مذہبی اور قومی فریضہ ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے نئے رہنما کے گرد اتحاد قائم کرنے کا عندیہ دیا اور مجلس خبرگان کے واضح فیصلے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ علی لاریجانی نے کہا دشمنوں کا خیال تھا کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ملک بند گلی میں پھنس جائے گا، لیکن بالآخر مجتبی خامنائی کو نیا رہبر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مجتبی خامنائی کا انتخاب کرنے والے ادارے مجلس رہبری کی اہمیت بھی اب بڑھ گئی ہے۔ مجلس رہبری کس طرح سے سپریم لیڈر کا انتخاب کرتی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران کے آئین میں رہبر اعلیٰ کا عہدہ سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی کی قیادت میں تخلیق کیا گیا تھا۔ ملک میں 88 علماء کا ایک ادارہ ہے جس سے مجلس رہبری کہا جاتا ہے اور رہبر اعلیٰ کا انتخاب یہی ادارہ کرتا ہے۔ ہر 8 سال بعد ایران کے لاکھوں شہری مجلس رہبری کے اراکین کو منتخب کرتے ہیں۔ آخری بار ایسا 2016 میں ہوا تھا، لیکن مجلس رہبری کے کسی امیدوار کو پہلے شورا نگہبان نامی کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ شورا نگہبان کے اراکین کا انتخاب بالواسطہ یا بلا واسطہ رہبر اعلیٰ کرتے ہیں۔ مجلس رہبری سے انتخاب کے بعد سپریم لیڈر تاحیات اس عہدے پر قائم رہ سکتا ہے۔ ایران کے آئین کے مطابق سپریم لیڈر صرف ایک آیت اللہ یعنی اہل تشیع کا مذہبی رہنما ہی بن سکتا ہے، لیکن جب علی خامنائی کا انتخاب ہوا تھا تو وہ آیت اللہ نہیں تھے، قانون بدلے گئے تھے تاکہ وہ یہ عہدہ سنبھال سکیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مجتبی خامنائی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تقرری ملک کے لیے عزت اور طاقت کے نئے دور کا آغاز ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس نیوز ایجنسی کے مطابق انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ اہم فیصلہ اسلامی قوم کے اتحاد کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، ایسا اتحاد جو مضبوط دیوار کی طرح ایران کو دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں مزید مضبوط بناتا ہے۔
अमरीकी महकमा खारजा या व्हाइट हाउस ने मुश्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किए जाने के बारे में फौरी तौर पर कोई सरकारी रद्दअमल नहीं दिया है। तहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस बारे में मनफी राय का इजहार किया था। ट्रंप ने मुश्तबा खामनाई को कमजोर शख्सियत करार देते हुए ये कहा था कि अमरीका चाहता है ईरान में ऐसा रहनुमा हो जो अमन और हम आहंगी लाए। उन्हें ईरान के नए लीडर के चुनाव में शामिल होना चाहिए, जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला के मामले में मुदाखलत की थी। ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर नए रहनुमा को अमरीकी मंजूरी न मिली तो वो तवील अरसे तक बरकरार नहीं रह पाएगा। अमरीकी खबरसां वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में तेल तनसीबात पर इसराइली हमलों के बाद अमरीका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 30 ऑयल डिपो और तवानाई के ज़खायर को निशाना बनाया, जिसके बायस कई मकामात पर बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी और धुएं के बादल शहर में फैल गए। जबकि अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल ने हमलों की शिद्दत और दायरा कार के बारे में अमरीका को पहले से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं किया था, जिसकी वजह से वाशिंगटन में तशवीश पैदा हुई है। अमरीकी हुकाम को खदशा है कि तवानाई के ज़खायर को निशाना बनाने से ईरान के अंदर हुकूमत के लिए अवामी हिमायत बढ़ सकती है और जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। वाशिंगटन को यह भी अंदेशा है कि ऐसे हमलों से आलमी तवानाई की मंडी में शदीद उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के बायस आलमी तेल की कीमतों में तेज़ी आना शुरू हो गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $80 फी बैरल के करीब पहुंच चुकी है। जबकि कशीदगी बरकरार रही या खलीज फारस में तेल की तरसील मुतासिर हुई तो कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। तजियाकारों के मुताबिक जंग के बायस आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई तो आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 से $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। फिलहाल मार्केट में कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह हकीकी किल्लत नहीं बल्कि जंग के फैलने का खदशा और सप्लाई में मुमकिना रुकावट का खौफ है। उधर अस्फहान में अमरीकी हमलों से शुआई अमल की तनसीब मुतासर हो गई है। ईरानी जौहरी सिक्योरिटी सेंटर ने इस बात की तस्दीक की है कि अस्फहान में अमरीकी हमलों से शुआई अमल की तनसीब मुतासर हुई है। ईरानी जौहरी सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक एविडेशन फैसिलिटी मुतासर होने से ताबकारी या आलूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली है। आपको बताएं कि ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का ये कहना है कि तेल के डिपुओं पर इसराइली हमलों के बाद जहरीली हवा लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है, जबकि तेल के डिपुओं पर इसराइली हमले के बायस फ़ज़ा में ख़तरनाक मवाद और जहरीले मादे फैल रहे हैं जो कि बड़े पैमाने पर जानों को खतरे में डाल रहे हैं। गुज़श्ता रात इसराइल ने ईरान में कई ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया था। निशाना बनाए जाने वाले तेल के डिपुओं में से एक दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मगरिब में वाक़े शहरान ऑयल डिपो भी था। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले बंद न हुए तो इसी तरह की जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान के पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका और इसराइल की जानिब से तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले बंद न हुए तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जारी बयान में तर्जुमान ने अमरीका और इसराइल पर शहरी इलाकों और ईंधन और तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। बयान में कहा गया है कि पासदारान इनकलाब ने अब तक इसी नौइयत की कई कार्रवाइयों से गुरेज किया है और तर्जुमान ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीका और इसराइल पर इन हमलों को रुकवाने के लिए दबाव डाले। बसूरत दीगर खिते में इसी तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अगर आप तेल की कीमत $200 फी बैरल तक लेकर जाना बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये खेल जारी रखें। आबनाए हरमज से तेल की बरामदात मुतासर हुई, आलमी मंडियां हिल कर रह गई हैं, जबकि खाम तेल की कीमतें $110 फी बैरल से भी तजावुज़ कर गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $110 फी बैरल से भी ज़ायद हो गई है। अपडेट कर रहे हैं कि आबनाए हरमज से तेल की बरामदात मुतासर, आलमी मंडियां हिल कर रह गई हैं। खाम तेल की कीमतें $110 फी बैरल से भी तजावुज़ कर गई हैं, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109 फी बैरल पर जा पहुंची है।
हम खबर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फ़ोन पर बातचीत की है। सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और उसके हमसाया ममालिक पर किए गए ताज़ा हमलों पर तबादला ख्याल किया और उसके साथ ही जारी जंग के खित्ते और आलमी सलामती पर मुमकिन असरात पर भी गौर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमरीका ईरान पर हमले जारी रखे हुए हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर अली खामनाई समेत 1300 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल और उन ममालिक को हदफ बनाया है जहां अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं और ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के जरिए रद्द-ए-अमल को जाहिर किया है। आपको बताएं कि कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी ने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग में शामिल तमाम फरीकैन से सूरत हाल को कम करने और कशीदगी ख़त्म करने की अपील की है। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हम ईरानियों से बातचीत जारी रखेंगे और कशीदगी कम करने की कोशिश भी करते रहेंगे। हालिया वाक़यात ने ईरान के साथ एतमाद पर मबनी ताल्लुकात को शदीद झटका पहुँचाया है। हम चाहते हैं कि कशीदगी कम हो और ऐसा सिफारती हल सामने आए जो न सिर्फ हमारी बल्कि उनकी भी तशवीश को हल करे। पहले ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि ईरान खलीज के ममालिक और दीगर ऐसे ममालिक पर हमले बंद करे जो इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं हैं। गुज़श्ता हफ्ते अमरीका और इसराइल ने ईरान पर मरबूत हमले किए थे, जिसके जवाब में तेहरान ने इसराइल और कई खलीजी ममालिक पर मिसाइल दागे जहाँ अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आज़रबाईजान के सदर अल्हाम उलियूफ से फ़ोन पर बात की है। इस मौका पर ईरानी सदर ने उन्हें बताया कि आज़रबाईजान में होने वाले ड्रोन हमले में ईरान मुलव्वस नहीं था। आज़रबाईजान के खबर रसां इदारे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें ईरानी सदर ने आज़रबाईजान में ईरानी सफारत खाने के दौरे और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद होने वाले शहरियों के लिए ताज़ियत पेश करने पर सदर अल्हाम उलियूफ का शुक्रिया अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ड्रोन वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, जबकि सदर उलियूफ ने भी इस बात पर जोर दिया कि वाक़े की हकीकत मालूम करना ज़रूरी है। इस मौका पर आज़रबाईजान के सदर ने ईरान में शहरियों की हलाकतों पर एक बार फिर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया।